Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. सीक्वेंस को दो पार्ट डिस्कस करते हैं. एक पार्ट खत्म हो गया सीक्वेंस का, दूसरा पार्ट शुरू हो रहा है सीक्वेंस का ही. हाँ जी, एफ ऑफ ए पे जाएगा. अभी तो टास्क है ना कन्वर्जेंस, टास्क है ना कन्वर्जेंस. ठीक है. एक चीज और, अगर ए एन 0 पे जा रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 अपॉन ए एन? कैन वी से एनीथिंग अबाउट 1 अपॉन ए एन? If an tends to 0, what about 1 upon an? Tends to infinity. Need not to be. Minus 1 to the power n into 1 upon n tends to what? What about 1 upon an? This is an. Plus infinity, minus infinity. दो तब जा रहा है. Unbounded. It has to be unbounded, that is sure. But can't say it is always going towards plus infinity or minus infinity. ठीक है. Now the concept is tendency towards plus infinity towards minus, means when sequence is not convergent या कोई और method to analyze sequences as far their character is concerned. ये जाता कहां है, किस तरह से मूव करता है. क्लियर? सो नेक्स्ट टर्म इज लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर. लिमिट सुपीरियर, लिमिट इंफीरियर. कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट सुपीरियर, लिमिट इंफीरियर. लिमिट सुपीरियर, लिमिट इंफीरियर. पहले लिमिट सुपीरियर. लिमिट सुपीरियर इसको लिखते हैं ऐसे, लिमिट सूप ए एन और लिमिट दिस ए एन. ये दो नोटेशंस हैं. It means how it is defined. Define Bn as supremum of an plus 1, an plus 2 and so on. ठीक है. So Bn is defined for all n if and only if sequence an is bounded above. अगर Bn bounded above नहीं है an, what is B1? Plus infinity. B2 plus infinity. So this Bn is defined for all n if and only if sequence is bounded above. है ना. सबसे पहले वो जो शुरुआती आपने की है ना, यू शुड सी वेदर सीक्वेंस इज बाउंडेड और नॉट. आई स्टार्ट विद लेक्चर विद दिस ओनली. द गिवन सीक्वेंस यू शुड फर्स्ट टेस्ट वेदर इट इज बाउंडेड और नॉट. सबसे पहले दिमाग में तो आना ही चाहिए ना कि बाउंड है कि नहीं है, मोनोटोनिक है कि नहीं है. हर जगह इस्तेमाल हो रहा है वो. सो फॉर गिवन सीक्वेंस फर्स्ट डिफाइन बी एन एज सुपीरियर ऑफ ए एन प्लस 1 एंड सो ऑन. व्हाट इज B1? सुपीरियर ऑफ A1, A2, An. That means superior of sequence itself. What is B2? Removing A1, then supremum. Clear? So if sequence is bounded above, so B1 will be superior of the whole sequence and rest removing 1, they are the sequence. It will always be defined. If sequence is not bounded above, even not B1 is defined, neither B2 is defined, no Bn is defined. Done? So Bn is defined if and only if sequence is bounded above. Bounded above. Confirm? Now, to case 1. If sequence an is bounded above, then B1 is supremum of A1, A2, An plus 1. That is sup An. सबका सब. B2 is supremum of A2, A3 and this implies B1 is greater than B2.
सोच के बताओ। इक्वल टू भी हो सकता है, इक्वल टू हो सकता है, प्रिंटिंग मिस्टेक लो। हाँ, बट B2 B1 से बड़ा तो नहीं हो सकता ना। B3 सिमिलरली B3 is supremum of A3, A2 and so on. So B3 is less than equal to B2. So in this way we get B1, B2, B3 and so on. That is sequence Bn is decreasing. So whenever sequence An is bounded above, you can define a new sequence Bn in this fashion. Define हो जाएगी। और ये सीक्वेंस कैसी आएगी? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। सीक्वेंस वॉज बाउंडेड अबव, बिलो का पता भी नहीं था हमको। द सीक्वेंस वॉज बाउंडेड अबव, बिलो इट इज नॉट नोन। So sequence Bn, we can't say anything about this. Now sequence Bn either converges to its infimum or goes to minus infinity. Two possibility na? Bn is what? Decreasing. And every monotonic sequence is either converges to its infimum or supremum, as the case may be. Increasing कहां जाती है? Supremum पे नहीं तो कहां जाती है? Infinity पे. Decreasing either to its infimum or goes to minus infinity. That is, है ना? So here then अब इसका then infimum of B1, B2, B and so on is defined as limit superior an. ये डिफाइन होता है फाइनाइटली और इनफाइनाइटली। फाइनाइटली और इनफाइनाइटली मतलब अगर बाउंड बिलो नहीं है तो क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी, है ना? अपने आप आ जाएगा वो फाइनाइटली और इनफाइनाइटली। इनफिनिम तो हम जानते हैं किस तरीके से निकालते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 करो प्रोसेस इसके ऊपर। अप्लाई द प्रोसेस ओवर एग्जाम्पल नंबर 5। गिव मी B1। B1 हाँ B1 -1। फॉर एग्जाम्पल नंबर 5 इट इज an equal to minus n, n equal to minus n, bounded above, sequence is bound above ना। what is B1 A1 -1 A2 -2 decreasing है। now what is B1 -1, what is B2 what is B2 -2, B3 -3, वही लौट के आ गई सीक्वेंस। अब इसका इन्फीमम माइनस इन्फिनिटी। सो व्हाट इज लिमिट सुपीरियर? माइनस इन्फिनिटी। समझ रहे हैं? एग्जाम्पल नंबर 17 नहीं 16। एग्जाम्पल नंबर 16 गिव मी B1। एग्जाम्पल नंबर 16 गिव मी B1। कुछ भी। 2 एग्जाम्पल नंबर 16 -3 -2 -1 0 1 2 1 0 1 0 1 0। व्हाट इज B1? डिफिनेशन क्या है? पूरे सीक्वेंस का सुप्रीमम। तो व्हाट इज B1? देखो गौर से इसमें क्या आएगा, बोलो। पर वॉल्यूम का है। हाँ अब बोलो। हाँ देखा है ना। B1 is 2 एग्जाम्पल नंबर 16 -3 -2 -1 0 1 2 1 0 1, यही तो है ना। What is B1? पूरे सीक्वेंस। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now.
सीक्वेंस का सुप्रीमम क्या आएगा? B1। इसमें सब में क्या है? सबसे बड़ा 2, B2 इसको हटाने के बाद सुप्रीमम, B3 इसको हटाने के बाद सुप्रीमम, B4 ये कौन सा टर्म था? 2 6 था ना? हाँ, 6 में यहां से स्टार्ट होगा। अब B7 अब इसको हटा के फिर दे, अब हमेशा क्या रहेगा? 1। तो 2 2 2 2 2 6 टाइम एंड देन 1 1 1 1 1 ऑनवर्ड्स। कंफर्म? You should know how to construct Bn. I'll give you various method to find limit, super limit, inferior. But first of all, classically करते क्या है? You are given a sequence An, question about limit superior suppose. So we need to notice whether it is bounded above or not. If it is bounded above, then we'll proceed. तो मैंने वो एग्जाम्पल दे रहा हूं जो बाउंड अबव हो, ठीक है? तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 16 जब देखा हमने तो ये क्या था, है ना? पता ना, -3 -2 -1 0 1 2 एंड 1 0 1 0 एंड सो ऑन। हम कैसे डिफाइन करते हैं? B1 पूरे सब का सुप्रीमम B1, फिर ये हटा के सुप्रीमम, फिर ये हटा के, एंड ऐसे करते आते हैं तो बनता जाएगा जो बनना होगा। कंफर्म? एंड देन ये जो आया हुआ है इसका इन्फीमम, तो क्या आया? 2 2 2 एंड देन 1 1 1 1 1। व्हाट इज इन्फीमम? 1। So limit superior is 1. For example number 16, limit superior is 1. Confirm? पक्का ना? What is B1 for example number 7? B1 9, B2 what is example number 7? 7, 9, 3, 1, 7, 9, 3, 1। सबका पूरा क्या आएगा? What is B1? 9। अब 3 तो नहीं आएगा ना, 9 आगे है ना, बहुत सारे हैं। सो इट इज व्हाट? ऑलवेज 9। सो व्हाट इज लिमिट सुपीरियर? इज 9। कंफर्म? एग्जाम्पल नंबर 2, व्हाट इज B1? व्हाट इज B2? B3 एंड सो ऑन। इसका इन्फीमम 0। लिमिट सुपीरियर 0। लिमिट सुपीरियर को सुप्रीम से कंफ्यूज मत कीजिए। लिमिट सुपीरियर, लिमिट इन्फिनिटी निकालने के अपने तरीके हैं, ठीक है? क्लियर हो गया यहां तक? नाउ राइट 2 इंपॉर्टेंट नोट्स रिगार्डिंग लिमिट सुपीरियर। फर्स्ट, if sequence An is not bounded above, then limit superior An is taken plus infinity. कुछ लोग कहते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, कुछ लोग इसका सिंबल लेते हैं किसके लिए? विच इज नॉट बाउंड अबव। टू से सीक्वेंस इज नॉट बाउंड अबव, इंस्टेड दैट वी राइट दिस लिमिट सुपीरियर प्लस इन्फिनिटी, ठीक है? तो व्हाट इज लिमिट सुपीरियर? फर्स्ट एग्जांपल बाउंडेड, तो हमारा Bn बनेगा। व्हाट इज B1? B2 ऑलवेज 1। भाई पूरे इसमें 1 तो हमेशा अवेलेबल है, हटाते जाइए 1 तो फिर भी रहेगा ना। B1 B2 दे ऑल आर 1, सो लिमिट सुपीरियर 1। बट एग्जांपल नंबर 4, An इक्वल टू n, नॉट बाउंडेड अबव, प्लस इन्फिनिटी। 5, इट इज बाउंड अबव, बट देन वी हैव प्रोसेस, देयर बी फाउंड minus infinity। 6th example, not bound above, limit superior plus infinity। 7, limit superior 9। 8th, not bound above plus infinity। 9, not bound above plus infinity। 10, not bound above plus infinity।
So if sequence is bounded above, then you have a process. If not bound above, you have answer. अगर बाउंड अबव नहीं है तो और अच्छी बात है, आंसर मिल गया मेरे को प्लस इन्फिनिटी. बाउंड अबव है तो ठीक है, प्रोसेस है, देखें क्या हो रहा है. गॉट द आइडिया? कंफर्म कि अगर एक तो ये और दूसरा एक ये भी नोट काम का है, आपको bn b2 बनाने में आसानी हो सकती कभी भी. इफ सीक्वेंस an is decreasing strictly, then bn equal to an. bn equal to an. bn equal to an. अच्छा, स्ट्रिक्टली ना भी हो तो भी चलेगा मेरे ख्याल से ये. हाँ, इसमें कहां जरूरत है स्ट्रिक्टली की, उसी टर्म को हटाते हैं केवल, जस्ट डिक्रीजिंग हो. ऑब्वियसली a1 इज गेट इक्वल टू ऑल एआईस, तो a1 अब a1 हटा दिया तो a2 इज गेट इक्वल टू ऑल एआईस. डिक्रीजिंग है तो a1 a2 उल्टा ये हो रहा है ना. व्हाट इज सुप्रीमम हियर? a1. नेक्स्ट सुप्रीमम हियर a2, नेक्स्ट a3 एंड सो. तो वो तो वही आएगा ना, bn इक्वल टू an. अगर ये डिक्रीजिंग है तो सेम आ जाएगा. गॉट द आइडिया? तो इसलिए जैसे एग्जाम्पल नंबर मान लीजिए हमारा 2 था, an इक्वल टू 1 अपॉन n, इट इज डिक्रीजिंग. व्हाट इज bn? वही आएगा. एग्जाम्पल नंबर 5, an इक्वल टू माइनस n, डिक्रीजिंग. सो व्हाट इज bn? माइनस n. अगर सीक्वेंस में डिक्रीजिंग है तो ये एज इट इज बन जाएगा. सो टू डिस्कस लिमिट सुपीरियर ऑफ अ सीक्वेंस, my first task, I'll see whether the sequence is bounded above or not. By looking at sequence, we can find out. If yes, it is bounded above, then I have a process to construct Bn. How Bn is defined? Bn is defined in this fashion that B1 is supreme of all. How to find B2? We remove A1 and then find supreme of all, and so on. This Bn is defined for all n if sequence is bound above. And then the set B1, B2, Bn, its infimum is taken to define limit superior. First bi's are defined and then the infimum of bi's is the limit superior. Among supremum, larger, smallest. What is supremum? Least upper bound. Among upper bound, the least. तो एक तरह से bi's, b1, b2 क्या है? अपर बाउंड दिख रहे हैं खुद को सेट के, फिर इनमें से infimum. So what is limit superior? The infimum of all bi's, and bi's are defined as supremum of removing first I minus 1 terms. bn में कहां करते हैं? एक हटा देते हैं, n माइनस. b1 में एक भी हटाया, b2 में एक हटाया, b3 में a1, a2. So we remove, to define bn, we first remove a1 to a n minus 1 terms, and then from remaining infinite terms we find supremum. Got the idea? Confirm. Which are unbounded above, we have ready-made answer that sequence is had limit superior plus infinity. जैसे 30th example is unbounded above, range is q, not bounded above, not below, range is q. 30th example. So what is limit superior? Plus infinity. Limit superior plus infinity. Confirm. Limit inferior. इसको ऐसे an और लिमिट n ऐसे लिखा जाता है. इसके लिए डिफाइन Cn as infimum of an plus 1 and so on. That is C1 equal to infimum of A1, A2. C2 is infimum of A2, A3 and so on. So Cn is defined. आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं. वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें. आप घर बैठे बैठे CSIR नेट
IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। For all n belong to natural number, if and only if sequence an is bounded below है ना। अगर ये बाउंड बिलो नहीं है तो यही इन्फिनिट माइनस इंफिनिटी आ जाएगा, यही माइनस इंफिनिटी रहेगा हमेशा, है ना। ये तभी डिफाइन होगा। सो वी कैन टेक टू केसेस। सो केस 1, व्हेन an is bounded below, it is bounded below, then Cn is defined for all n belong to natural number, and C1, C2, C3 and so on। ये होगा कि नहीं होगा? C1 क्या है? पूरी सीक्वेंस का इन्फीमम, सबसे छोटा। C2 क्या है? एक मेंबर हटाने का जो बचा उसका इन्फीमम। तो वो इससे छोटा कैसे हो सकता है C1 से? C1 तो पूरे सीक्वेंस सबसे छोटा हो सकता है। तो C2 क्या होगा? C1 से बड़ा होगा या इक्वल हो सकता है, छोटा तो हो सकता है ना, ठीक है, एंड सो ऑन। तो इन दिस वी गेट इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर Cn, सो दैट इज Cn is increasing. So limit inferior an is the supremum of C1, C2, Cn, Cn plus 1 and so on. बार बिलो लगा हुआ जो फाइनाइटली और इनफाइनाइटली। Case 2, when an is not bounded below, then limit inferior an is taken to be minus infinity. And note, when an is increasing, then Cn equal to an. आपको जो टर्म डिफाइन हो रहे हैं उन पे थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, उसको बार बार पढ़ने की कोशिश कीजिए, वो क्या कह रहा है, कैसे बात कर रहा है वो, एंड देन ट्राई टू कंस्ट्रक्ट an, bn, cn, dn एक्सेट्रा जो भी आपके पास है, अपना अपना देखिएगा। और सिंपल एक एग्जांपल कोड कर रहा हूं, एग्जांपल नंबर 15। एग्जांपल नंबर 15 इसके -1 बाई n, 1 + 1 बाई n इवन ऑड पे, इसके प्रॉपर C1, C2, Cn, B1, B2 लिख के देखिए। आप क्या करना, ऐसे लिखना B1, B2, B3 ऐसे ऐसे, और यहां की वैल्यू लिखना, और फिर नीचे C1, C2 उसकी वैल्यू लिख, प्रॉपर लिखने की कोशिश करो, क्लैरिटी आएगी, ठीक है, करो लिखने। मैंने दोनों डिफाइन कर चुका हूं मैं। एग्जाम्पल नंबर 15, -1 बाई n, 1 + 1 बाई n परहैप्स, ठीक है। सोच समझ के फर्स्ट टाइम में क्लियरिटी के साथ आना चाहिए, यही है। an equal to -1 by n, n is odd, and 1 + 1 by n, n is even. What is B1? B1 is B2 1 + 1 by 2 only, है ना। B3 1 + 1 by 4 and B4 भी वही,
ऐसे से आएगी, क्योंकि आप एक ही टर्म तो हटाते हो ना, तो आप जब A1 हटाओगे तो ये हटेगा, ये तो फिर भी रहेगा, तो उसके बाद भी अगले टर्म पे भी ये रहने वाला है। सो इन दिस वे दे आर ट्वाइस। अब इसका क्या करते हैं हम लोग, इन्फीमम, इसका इन्फीमम क्या आएगा, 1। सो लिमिट सुपीरियर an इज 1, ऐसे C1 क्या आया, -1 C2 -1, ये हट जाएगा, ये अकेला आ रहा है, C3 एंड सो ऑन। सो इसका सुप्रीमम C1 C2 दैट इज विल बी लिमिट इंफीरियर an इज -1। ठीक है, सो किसी भी सीक्वेंस के लिए लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर आप निकाल सकते हो, पक्का। बताओ C1 फॉर 8th एग्जाम्पल, हाँ C1, C2 के लिए हम पहला टर्म हटा चुके होंगे ना, C2 कहां से स्टार्ट होगा, C2 इज सुप्रीमम ऑफ A2 A3 एंड सो ऑन, और ये A3 है, इसमें एक अकेला आया, इसमें नहीं, सारे डबल डबल आ रहे हैं। क्लियर, ये समझा रहा कैसे कर रहे हैं। व्हाट इज B1, सबका सुप्रीमम पूरे एंड तक का, तो इसमें कौन सी टर्म है सुप्रीमम, ये तो इससे छोटा है, तो सुप्रीमम यहां से आएगा ना, इनमें सबसे बड़ा कौन होगा, ये सबसे बड़ा ये टर्म आएगा 1/2, इसके आगे तो टर्म और छोटे होते जा रहे हैं ना। तो अब फिर से देखिए ना इसको क्या इश्यू है यहां पर आपको, जो an को लिख सकते हो आप, an ऐसे, हाँ, -1 -1/1, 1 + 1/2, -1 -1/3, 1 + 1/4 एंड सो ऑन। व्हाट इज B1, पूरे इसका सुप्रीमम, इस सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, यही सबसे बड़ा है ना, माइनस वाले तो छोटे ही है सारे, इनमें देखना होगा, इनमें सबसे बड़ा कौन है, तो B1 1 + 1/2। अब B2 क्या होगा, इसको हटा के सबसे बड़ा कौन है, अभी वही है। और जब इन्फीमम की बात करोगे तो आपका -1 -1 ये है पहला, सबसे छोटा कौन है, ये, तो C1। अब C2 के लिए ये हटा दीजिए, अब सबसे छोटा कौन है, आप बताओ, -1 में जो हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो नंबर छोटा ही हो रहा है ना, जब सब मैक्सिमम सबट्रैक्ट करेंगे तो मैक्सिमम छोटा हो जाएगा वो, तो -1/3 और -1 -1/5 में कौन छोटा है कौन बड़ा है, बताओ पहले, इसमें से कौन छोटा कौन बड़ा, ये वाला इससे छोटा है कि बड़ा है, ठीक है ना। लैम्डा एक नंबर है, जब इसमें से कोई पॉजिटिव क्वांटिटी सबट्रैक्ट करते हो तो वो छोटा हो जाता है। अब जब ज्यादा सबट्रैक्ट हो तो ज्यादा छोटा होगा, और कम सबट्रैक्ट हो तो कम छोटा होगा, तो हमने 1/3 और 1/5 में कौन सा बड़ा है ठीक है, जो मैं आपसे कह रहा हूं ना कि एग्जाम्पल्स उठा के बाबा रामदेव वाली स्टाइल में आगे बढ़ जाइए, फायदा होगा, उससे करने से होगा। ठीक है, आप क्वेश्चंस खुद, और ये बहुत फंडामेंटल चीजें हैं, और ऐसी बात नहीं है आपको एकदम से नहीं दिखता तो कोई दिक्कत है, आप करते नहीं है, हैबिट में नहीं है, इतना इनर्शिया होता है यार, कौन गुणा भाग करे, कोई कर दे मेरे लिए बगल में, उसको देख लिया उसको देख लिया, हो गया तेरा, ठीक है फिर मेरा भी यही। अब बचने की कोशिश कीजिए। एक लड़का सीरियसली ना, कुछ लोगों को देख के लगता है कि ये कोई भी एग्जाम बड़े आराम से क्वालिफाई करेंगे, मतलब रैंक 1 IES, रैंक 1 IFS, इंजीनियरिंग सर्विसेज में रैंक 1, फॉरेस्ट सर्विसेज में रैंक 1 एंड यूपीएससी सिविल सर्विस रैंक 6। HR Gulshan I am talking about, who expired last 2 years back, just DM in somewhere UP, रोड एक्सीडेंट में बेचारा एक्सपायर हो गया वो। बट ना IES में रैंक 1, FS में रैंक 1, अगले 2 साल में ये तीनों रिजल्ट थे उसके पास। Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR NET Maths and JAM.
Visit our website or click on the link highlighted to know more. The best part, the moment you share a question, start solving. वो यहां वहां सब जगह देखना बंद, सीधे पैसे घुस जाएगा उसमें कि कहां क्या क्या हो रहा है. प्रॉपर फोकस कंसंट्रेशन उसी के ऊपर. उसके बैच के और सारे बच्चे भी उसी बैच में थे. ही वाज फ्रॉम आईटी कानपुर. फ्रॉम दैट आईएएस बैच आई गॉट अराउंड 20-25 रिजल्ट्स. मतलब क्या क्लासिक बैच होते थे होंगे उसमें. आईटी बहुत सारे आईटीएस बैठते थे. दे आर रियली गुड इन मैथमेटिक्स. आइडिया भले ना हो, लॉजिकली बड़े साउंड होते हैं. दे वर स्टडिंग फर्स्ट टाइम ग्रुप थियरी and in lots of places so-called MSc student were there in the class. I'm using so-called, but they are much better. Actually, they have logic ना कि सर ये तो नहीं होना चाहिए. Why they should be sir n equal to 0 start कर रहे हो, 1 से start कर रहे हो, कहां से start कर रहे हो. Every point they are taking care of. And the best thing, the moment you ask question, they start solving. Focus only on question paper and content. ना दाएं बाएं कुछ नहीं. मतलब ये एक हैबिट है. आईटी जो काम करती है, सबसे अच्छा काम आईटी ये करती है कि इट हेल्प यू सॉल्व प्रॉब्लम्स. कोई कुछ करने वाला तो है नहीं वहां पर. कोई कुछ नहीं कराता आईटी के अंदर. आप जाएंगे दुखी हो जाएंगे. कोई कुछ नहीं कराता. वो टीचर आते हैं, लेक्चर दे आर ऑन देयर प्लेटफॉर्म. वो टॉप लोग होते हैं, ग्रेट लोग होते हैं. वो आएंगे, अपना लेक्चर देंगे. उसमें जो अच्छा बच्चा है, इसको फोर्स करना आता है, वो बहुत कुछ गेन कर लेगा. जो फॉर्मल ट्यूशन वाले तरह से पढ़ाया कि सर काम करा दो, ये क्वेश्चन सॉल्व करा दो, वो बाहर हो जाता है सिस्टम से. तो बेस्ट थिंग जो वो सिखाते हैं ना कि आप अपने आप कैसे सीख सकते हो, हाउ मच यू गेन योर सेल्फ. लेक्चर विल बी यूनिफॉर्म. हो सकता है कि वो लेवल तक आप पहुंच भी ना पाओ जहां तक वो बात कर रहा है. दे आर लिटरली ग्रेट पीपल. द प्रोफेसर टीचर, दे आर वंडरफुल. दे आर मास्टर देयर सब्जेक्ट. द क्वेश्चन इज व्हाट दे आर सेइंग और डिलीवरिंग यू आर रिसीविंग और नॉट. रिसीव करने का तरीका ये होता है कि वो जो कंटेंट है, वो लैंग्वेज है, वो हमको समझ में आ रही है. एंड देन इफ यू आर नॉट गेटिंग, आई एम वर्किंग एट होम. और फिर जब नेक्स्ट क्लास में जा रहा हूं तो वो कवर अप करके जा रहे हैं. क्योंकि एट द एंड ऑफ 6 मंथ जो भी पीरियड होता है, आप भुगतने वाला कौन है? वो तो टीचर अभी वही है. अल्टीमेटली यू आर गोइंग. और फिर उसका एक्सक्यूज दे देना कि सर हमको नहीं समझ में आया था, मीन्स यू आर फाइंडिंग समवेयर द प्रॉब्लम इज बीइंग सॉल्व समवेयर एल्स. अगर आपको चीज समझ में नहीं आ रही है ना, सॉल्यूशन पहले अपने आप को देखो. बुक पे कमेंट करना या बुक पे या जो टीचर है या जो भी कंटेंट है एग्जाम है, ये तो बाद में है ना बहाने बनाने के लिए. अभी से क्यों? ये तो 6 महीने बाद बनाना ना बहाने कि सर ने नहीं पढ़ाया था या वो कंटेंट में से बाहर से आ गया, आउट ऑफ सिलेबस. रखो ना एक्सक्यूज रेडीमेड पिताजी को बताने के लिए, बोलने वालों को. बट अभी कम से कम ना करो. ऑलरेडी 6 मंथ में ये जरूर करो, स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम. किसी भी प्रॉब्लम में आप इसलिए नहीं फंस रहे हो कि ये डेफिनेशन क्या है. कहां फंस रहे हो? वो बेसिक कैलकुलेशन में. एंड इट इज नॉट बिकॉज यू आर हैविंग सम लेस आईक्यू एंड ऑल. आदत नहीं है सर, कौन करे. बिल्कुल लाइट ऐसे ही कर रहे थे. ऐसे कुछ भी अवॉइड. बी अलर्ट ओवर क्वेश्चन. ना अलर्ट, जैसे क्वेश्चन मिले सीधे शुरू हो जाए उसके ऊपर. ये है. एनीवे, सो यू नो हाउ टू फाइंड लिमिट, सुपर लिमिट, इंफीरियर. सिंपल स्टेप. स्टेप 1, लुक एट बाउंडेडनेस. वंस इट इज कंफर्म, देन व्हाट यू वांट टू फाइंड. पहले डिसाइड तो करो. लिमिट सुपीरियर. ओके, first you decide the limit superior. You have to answer over limit superior. So, okay, let us find limit superior. How? Bounded above. No. Answer. Plus infinity. Example number 8. है ना? 8. 4n. Not bounded. Above. But below it is. So, limit superior. Answer मिल गया? Plus infinity. Now, limit inferior. इसके लिए क्या करना होता है? We see whether it's bound below or not. It is bound below. What is B1? C1. इसके लिए C1 आएगा. 4. इस रेंज में 4 से छोटा कोई नंबर है नहीं, और आगे बार बार आ भी रहा है. ऐसा नहीं शुरू हटाने के बाद 4 बार गायब हो जाएगा. इट विल रिमेन ऑलवेज. सो C1 4, C2 4, C3 4. ये रहेगा 4 हमेशा. क्यों? सीक्वेंस को देख लो. AN क्या आ रहा है? 4 4 4 4 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. फिर 4 आएगा, कहीं तो आएगा. जब प्राइम तब तो 4 आएगा. इसको हटाने के बाद भी इन्फिनिटी यही रहेगा. तो व्हाट इज C1 C2? 4. इसका सुप्रीम 4. सो लिमिट सुपीरियर 4, इंफीरियर 4, लिमिट सुपीरियर प्लस इन्फिनिटी. डन. एग्जाम्पल नंबर 9. नॉट बाउंड अबव. एग्जाम्पल नंबर 9. 2 and P. 2 and P. So, limit superior
9. Limit superior, that answer, plus infinity. For limit inferior an, we are looking at it is bounded, and what is 2 is appearing so many times. So whenever we remove any term, 2 is still there, and among those it is the smallest one. So it is always 2, 2, 2, and its supremum 2. लिमिट्स इन्फीरियर के लिए हम बनाते हैं इन्फीरियम से और फिर उसका सबका सुप्रीम ले लेते हैं. सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 4. दिस इज इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल. एग्जाम्पल नंबर 4. इट्स लिमिट सुपीरियर ए एन इज प्लस एन, नॉट बाउंड अबव. कंफर्म? नॉट बाउंड अबव. ए एन इक्वल टू एन. ए एन इक्वल टू एन इज द एग्जाम्पल नंबर 4. नॉट बाउंड अबव. नाउ limit inferior an, it is what? Supremum of c1, c2, cn. It is bounded below. What is c1? 1. c2 uska supremum plus infinity. Interesting. इस एग्जाम्पल का सुप्रीम प्लस इन्फिनिटी आया, इन्फीरियम प्लस इन्फिनिटी आया उसकी मर्जी. बट यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज विद द सुप्रीमम ऑफ द सीक्वेंस एंड लिमिट सुपीरियर. इंटरेस्टिंग तो ये है एग्जाम्पल, जरा देखना -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन. एग्जाम्पल नंबर 16. ऐसा था हम लोग तमोला खेल रहे हैं. यू नो तमोला? हाउजी, तमोला, कोई बात नहीं. सीक्वेंस जानते हैं ना? दिस इज सीक्वेंस. व्हाट इज सुप्रीम ऑफ द सीक्वेंस? व्हाट इज सूप ए एन? सूप ए एन पक्का 2. इनफीमम ए एन -3. लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर सब अलग अलग. लिमिट सुपीरियर, सुप्रीमम, लिमिट इंफीरियर, दे ऑल आर डिफरेंट. ट्रू? सो लिमिट सुपीरियर और सुप्रीमम, लिमिट इंफीरियर और इंफीरियम, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू. मे और मे नॉट बी इक्वल. जैसे एग्जांपल आया ना आपका, ये भी एग्जांपल था आपका इसका. इसमें सुप्रीमम क्या आया? इसका सुप्रीम क्या है? सुप्रीम ऑफ दिस एग्जांपल इससे बड़ा टर्म सीक्वेंस में नहीं है और ये सीक्वेंस में है, तो अपर बाउंड एज वेल एज सुप्रीमम. और लिमिट सुपीरियर 1. इनफीमम ऑफ द सीक्वेंस और लिमिट इंफीरियर सब अलग अलग है ना. ठीक है. एक आपको डायरेक्ट मेथड देते हैं, विल बी इजी टू फाइंड, है ना. ये देख ली ना, सारा आसान हो जाएगा. इसी से निकालना जब भी निकालना हो, टेंशन ही खत्म. ठीक है. बट ये माथापत्ती जरूरी है. यू नो द सुप्रीमम ऑफ एम्प्टी सेट is minus infinity and inferior of empty set plus infinity. Clear? Now when you have to find limit superior, if bounded, if not bounded above, I am done. My answer is plus infinity. If bounded above, then I have to go for process. You can avoid this process if you can find limit point of the sequence. That second method depends on limit point of a sequence. Suppose S be the set of limit point of an. Rather L be the set of limit points of sequence an. If it is bounded above, that is important, bounded above, then supremum of this set will be limit superior. Supremum of the set of limit point. So this is another method I am sharing. You can use this. Let L equal to the set of limit points of an. Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now.
नाउ इफ ये डिपेंडिंग किसके ऊपर है, बाउंडेड, इफ सीक्वेंस ए एन इज बाउंडेड above, then sup L, कंफ्यूज मत होइएगा किसका सुपीरियर है, sup L इक्वल टू लिमिट सुपीरियर ए एन. इफ ए एन इज बाउंडेड बिलो, then infimum of L is limit एक ही तरफ से निकल रहा है. अच्छा, बाउंडेड अबव, तो इससे और अबव नहीं होगा, सुप्रीम कहां से आएगा, प्लस इन्फिनिटी, तो भी नोन है. इफ बाउंडेड बिलो देन लिमिट इन्फिनिटी यहां से आ गया, और नॉट बाउंड बिलो दो भी लिमिट इन्फिनिटी नोन है, तो कंप्लीट तो यहां भी हो गया ना. जैसे आपका एग्जांपल नंबर देखेगा, सिंपल, ए एन इक्वल टू एन, व्हाट इज लिमिट सुपीरियर, प्लस इन्फिनिटी, कंफर्म, बाउंडेड अबव नॉट. Now it is bounded below. Now, and what is L? Empty set. It is bounded below. What is limit now limit inferior, because it is bounded below. Limit inferior is what? Supremum of infimum of, इस केस में infimum of L. What is infimum of L? Plus infinity. Confirm? Example number 8, a n equal to 4n as the discussion, L is singleton 4. Since a n is not bounded above, तो एक आंसर मिल गया मुझे, लिमिट सुपीरियर a n इक्वल टू प्लस इंफिनिटी, बट बाउंडेड बिलो, इन दैट केस सुपीरियर ऑफ दिस सेट, इनफिनिटी ऑफ दिस सेट, व्हाट इज दैट, 4, वो भी आ गया यहां पर. जो दोनों से बाउंडेड है तो लॉटरी फिर तो. इफ सीक्वेंस इज बाउंडेड बाय बोथ साइडेड, देन व्हाट, जस्ट सेट ऑफ लिमिट पॉइंट एंड देयर सुप्रीमम एंड इनफिनिमम विल गिव यू लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर, है ना. जैसे आपका -1 बाय एन, 1 + 1 बाय एन, दिस इज ए एन, बाउंडेड सीक्वेंस हैज टू लिमिट पॉइंट L इक्वल टू -1 and 1, सो लिमिट सुपीरियर 1, लिमिट इंफीरियर -1. वी विल प्रूव दिस बाय दैट ऑल्सो इफ यू विश, कि ये वही क्यों आ रहा है इन दैट केस. बट क्या समझ आ रही है. सो इफ सीक्वेंस इज बाउंडेड, जस्ट कलेक्ट लिमिट पॉइंट्स, द सुप्रीम ऑफ द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट इज लिमिट सुपीरियर एंड इनफिमम इज लिमिट इंफीरियर, बट ऑफ विच सेट ऑफ लिमिट पॉइंट. सीक्वेंस के मत शुरू हो जाना, और इससे एक रेडीमेड रिजल्ट मिल रहा है. इफ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, यू नो इट इज बाउंडेड, एंड दैट बाउंड बिलो एंड अबव बोथ, एंड इट हैज ओनली वन लिमिट पॉइंट, एंड दैट लिमिट पॉइंट हैज टू बी लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर बोथ, एंड इट इज इफ एंड ओनली इफ कंडीशन. और ऑन द बेसिस ऑफ लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर वी डिस्कस, on the basis of limit superior limit inferior we discuss convergence, divergence and oscillation. These terms convergence, divergence and oscillations are discussed with the help of limit superior limit inferior. ठीक है. बार्टले कहते हैं -1 to the power n is divergent. आपने देखा होगा बार्टले, उसमें ये लिखा हुआ है -1 to the power n is divergent. See, he is not defining divergence by some other method. He is simply saying if a sequence is not convergent, then divergent. But we don't have that kind of result. We have 3 disjoint classes. Sequences are of 3 type. नाना प्रकार की सीक्वेंस होती हैं, है ना. पहला प्रकार convergence, second type divergence, third type oscillatory, and then again oscillatory are divided in 2 parts. Oscillate finitely, oscillates infinitely. So ये इतने प्रकार की सीक्वेंस होती हैं, उनमें से आपको एक चूज करना होता है. ठीक है. जो रियल नंबर में इनफिनिटी शामिल कर लेंगे, इफ यू इंक्लूड -infinity एंड +infinity एंड से दिस इज माय एक्सटेंडेड रियल लाइन, इट्स अप टू यू, कर लो, आप ही भुगतो फिर उसको. -infinity +infinity दोनों शामिल कर लीजिए, एंड दैट इट विल बी योर एक्सटेंडेड रियल लाइन, एंड देन देयर विल बी नो टर्म एज सच डाइवर्जेंस. लिमिट सुपीरियर इक्वल टू लिमिट इंफीरियर, इनफाइनेटली और फाइनेटली कन्वर्जेंस.
because now your infinity is what? Into real number. तो convergence means both are equal. अब infinity तो अलग कर नहीं सकते आपके, तो उसमें real में शामिल हो गया वो. So that is simple definition. If both equals finitely, convergence, infinitely, divergent, else oscillatory. ये definition हमारी आ जाएगी. मतलब लिमिट सुपीरियर, जैसे इसमें देखा ना, दोनों क्या आ गए? प्लस इन्फिनिटी. यहां पर एक प्लस इन्फिनिटी और एक, ये दोनों अनबाउंडेड सीक्वेंस है, दोनों अनबाउंडेड सीक्वेंस है, बट दिस इज नॉट डाइवर्जेंट, दिस इज डाइवर्जेंट, है ना. दिस इज बिकॉज बोथ आर प्लस इन्फिनिटी. ए एन इक्वल टू माइनस एन, लिमिट सुपीरियर ए एन आपको देखेंगे माइनस इन्फिनिटी, और लिमिट इंफीरियर ए एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी. सिंस इट इज नॉट बाउंड बिलो, सो व्हाट इज लिमिट इंफीरियर? माइनस इन्फिनिटी. कंफर्म. बट इट इज बाउंड अबव. So now go for limit point set. Limit point set is empty set. In that cat, it's supremum. And what is supremum of empty set? Both the cases clear. So when both are equal, we say convergent or divergent as per that equality to a finite number or infinite. Unequal, oscillatory. हम आपको लिखवा देंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में लिखवा देंगे आपको. Got the idea? And next class will be discussion over this limit super limit inferior, some examples, and with the help of this, a very special analysis of sequence of rationals and of natural numbers. We need to discuss sequence of rationals and of natural number separately, because in LCD this analysis is going to help a lot. LCD में limit count differentiability में जितने भी chicken pox functions है ना, they all are based over this analysis of सीक्वेंस ऑफ रैशनल्स. ठीक है, चलिए मिलते हैं. आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं. वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें. आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो. लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ें या QR कोड स्कैन करिए.